দেখো আদিত, তোদের প্রজেক্টাইল মোশনে নিশ্চয়ই সাইন থিটা কস থিটাটাকে বেশি ইম্পর্টেন্ট দেওয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আমি একদমই দেব না, এই জন্য বললে একটু ক্লাসটা দেখে নে, তাহলেই বুঝতে পারবি কিভাবে আমি জিনিসটাকে ডিল করছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাতে মনে ঠিক রাখাটা আছে। সহজ হবে, জিনিসটা বুঝতেও ইজি হবে। প্রজেক্টাইল মোশন, projectile motion means a motion under gravity when particle is projected at an angle not 90 degree. 90 डिग्री में अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा वर्टिकल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। और अगर नॉन 90 डिग्री में अगर प्रोजेक्ट करेंगे यानी थीटा एंगल में विद हॉरिजॉन्टल विद सर्टेन स्पीड u, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें दो मोशन आएगा, एक मोशन में आई एम टेकिंग दिस वन एज x एक्सिस and this one as y axis. u का दो कंपोनेंट, एक होगा along x एक्सिस में ux और along y एक्सिस में uy। साइड में लिख लेंगे ux इक्वल टू कितना u cos थीटा और uy इक्वल टू कितना u sin थीटा। जब जरूरत पड़ेगा तभी इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके फाइन। along x axis there is no acceleration, तो ax equal to 0. along y axis there is an acceleration and that is due to gravity g, और वो नेगेटिव में है, यानी ay equal to I can write minus g. Okay, this is point of projection. I am taking this one as 0 origin. Now at any instant of time the particle what moves along in such a way, here its velocity will be what? We know that velocity is always tangential to the path. velocity हमेशा path के क्या होता है? tangential. ये हो गया उसका velocity v. This v has two components. One is along x axis vx, another is along y axis vy. Okay, vy यहाँ पे लिखते हैं along x axis. x axis में started from origin, any distance covered along x axis x is equal to ux into t at any time t. x equal to uxt as there is no acceleration. और vx equal to क्या होगा? We know that v equal to u minus at by u plus at. a तो है नहीं, तो vx equal to क्या हो गया? ux only. ये हो गया along x axis का मोशन। along y axis में acceleration है and that is minus g. So we can write here, first equation should be written as vy. vy can be written as uy minus gt. I'm taking this equation as 1, this equation as 2, this equation as 3. y started from origin at any height y, this is y, this is a y is equal to minus half gt square, equation number 4. And also vy square is equal to uy square minus 2gy, equation number 5. इतना आई बिलीव सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा चीज था। रिद्धि समझ में आया? रणवीर, हर्षित तुमको समझ में आ गया?
सर लास्ट वाला नहीं से समझ में आएगा। बेटा सर लास्ट लास्ट वाला वाला तो नहीं हम समझ लोग में आया, एक जानते। बार बताइए। बेटा लास्ट वाला का मतलब ये वाला बोल रहा है तो हाँ सर। अरे वी वाई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh या 2gy किया था ना बेटा। इधर तो y कंपोनेंट में वेलोसिटी वी वाई हो गया, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, सिर्फ y कंपोनेंट का वेलोसिटी देख रहे हैं ना अपने, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy। अब समझ में आया? y इज द व्हाट हाँ एट सर। एनी y। हाँ। ঠিক আদিত্য তোর কোনো অসুবিধা নেই নিশ্চয়ই? हाँ सर। ठीक है, एक बार अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मोशन ऐसे तो किसी भी टी में हम लोग ले लिया, उसके बाद क्या ऐसे मूव करते करते एज वी वाई वी फाउंड फ्रॉम दिस इक्वेशन 3 वी वाई ऑब्वियसली यू वाई इज इनिशियली हायर and there is what minus gt. As time goes this velocity decreases and ultimately will be equal to 0 at maximum height. So at maximum height when it reaches this height we call it y equal to capital H. Here vy equal to 0 but vx remain ux only at any time. So here there will be only one velocity and one velocity component, we call it ux. एक ही वेलोसिटी रहेगा वो है ux। उसके बाद क्या, नाउ फर्दर टाइम गोज एज टाइम गोज दिस वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव देयर आफ्टर, vy अब नेगेटिव होगा मतलब द डायरेक्शन विल चेंज and direction will change and ux will remain same or vx will remain same. So as time goes at any instant of time here this is vy, this is vx, vx will remain same as before, that is equal to ux. इसका टेंजेंट के डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी आ जाएगा, नेट वेलोसिटी। और ऐसे करते करते फाइनली जब ये इस पॉइंट पे गिरेगा, आई कॉल दिस पॉइंट एज ए, here the velocity I will show you, ux component will remain same ux और vy का कंपोनेंट हो जाएगा यानी y component will becomes minus uy। यहां पर जैसे प्लस uy था यहां पे हो जाएगा माइनस uy। आई विल शो यू, डोंट वरी। यानी यहां पर भी वेलोसिटी जो आएगा वो वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ u आएगा, which will make equal angle with respect to positive x-axis as before. Angle of projection equal to angle of landing, दोनों सेम होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ से इसी इक्वेशंस को यूज करके सारा डिटेल्स निकालेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले as I told you that at point A means at the landing point पे at point A मैं इसको बोलते हैं सेम लेवल। at point A at same horizon y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना, इसका y का डिस्प्लेसमेंट कितना, y इक्वल टू 0। तो फ्रॉम 5 we know that vy square equal to uy square, y तो 0 है तो minus 2g into 0 is equal to 0. That means vy equal to you will get plus minus uy, plus uy at the point of projection O and minus uy at the landing point or at the same horizon A. So at A we got here, at A vy equal to minus uy मिल गया। Now time of flight,
टाइम ऑफ फ्लाइट वी कॉल इट टी बा TF. तो फ्रॉम वन नहीं कितना है रे, फ्रॉम थ्री वी कैन राइट टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल जब यहां से वापस जाके वापस यहाँ आए, मतलब ऐसे करके यहाँ पे लैंड करेगा, यानी y डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यानी उसका फाइनल वेलोसिटी जब माइनस ui होगा, इनिशियल वेलोसिटी ui, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा. तो फ्रॉम 3 व्हेन u इक्वल टू t इक्वल टू tf vy इक्वल टू माइनस ui. सो माइनस ui इक्वल टू ui माइनस g tf. देखो यहां से कैलकुलेशन करके tf इक्वल टू आ गया 2uy बाई g, टाइम ऑफ फ्लाइट. मतलब क्या, पहले था मेरा 2u बाई g वर्टिकल मोशन में, अब यहाँ पे सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 2uy बाई g, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके फाइन, ये भी मिल गया. मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट y इक्वल टू h when vy इक्वल टू 0. कौन सा इक्वेशन उठाएंगे, फ्रॉम 5 वाला इक्वेशन. y का वैल्यू h पुट कर दो और vy का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh. तो h का वैल्यू आ गया uy स्क्वायर बाई 2g. मैक्सिमम हाइट इक्वल टू uy स्क्वायर बाई 2g. वेरी सिंपल. These are the basic things that we have learnt in motion under gravity also. Okay, fine. Now, time of ascent. Time of ascent. Time of ascent. उठने में कितना टाइम लग रहा है? When particle reaches at the maximum height h, how much time it takes? So we can easily get this one from equation 3 again. From equation 3, t equal to ta when vy equal to 0. तो 0 इक्वल टू uy माइनस जी TA. तो TA का वैल्यू मिल गया uy बाई g. Now interesting thing we just got, उठने में टाइम लगा uy बाई g, टोटल टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy बाई g. तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट TD, that equal to TF minus TA, which is equal to 2 minus 1 means uy by g. यानी जितना उठने में टाइम लगता है उतना ही गिरने में टाइम लगता था. सेम थिंग दैट वी हैव लर्नड इन मोशन अंडर ग्रेविटी. अब क्या करेंगे, এবার কি করব, এবার আমরা বের করব যখন এটা ল্যান্ড করছে এ তে, what is the maximum distance it covers along horizontal direction. We call it r. Now r equal to horizontal range. Covered in t equal to tf. इस टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो ये कहां से मिलेगा, as x qx into t. so x इक्वल टू जब r हो जाएगा
तो ux इंटू टी का वैल्यू tf हो जाएगा। दैट मीन्स r इक्वल टू ux इंटू tf का वैल्यू हो गया 2uy बाई जी। मतलब r का वैल्यू आ गया 2 इंटू ux इंटू uy बाई जी। 2 इंटू ux इंटू uy বাই g। এতটা সবাই বুঝেছো? এতটা সবাই বুঝেছো? हाँ सर। रणवीर को समझ में आ गया? रिद्धि, हर्षित समझ में आया? यस सर। ठीक है। এবার এইখানেই মানে यही वाला चीज है जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी में नहीं था। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हैं रणवीर? सर वो एक्स और वाई का रिलेशन निकालते हैं एक्स और आपस वाई का में। रिलेशन। अब बताओ हमको यहाँ पर कौन कौन सा दो इक्वेशन यूज करेंगे? यहाँ पर आप पहला और दूसरा यूज कर सकते नहीं, उसमें तो वाई नहीं है। पहला वाला और फोर्थ वाला यूज कर। बिल्कुल सही। कैसे यूज करेंगे बता दो। उसमें से एक्स को लाइक टी टर्म्स में ले लेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। यानी यू आर सेइंग मतलब दैट, टी बोलो। इक्वल्स एक्स बाई यू एक्स ले लेंगे अगर, और उसको उसमें वाई वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर वही करते हैं। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फ्रॉम 1 and 4। सो हम लोग क्या करेंगे? 1 से मिलेगा t इक्वल टू एक्स बाई यू एक्स यूजिंग t इक्वल टू एटा फ्रॉम 1 इन 4 क्या था रे? y इक्वल टू यू वाई, t के जगह में पुट कर देंगे x बाई यू एक्स माइनस हाफ g इंटू टी के जगह में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टी स्क्वायर था ना, यहाँ यू एक्स स्क्वायर। अब इसमें से थोड़ा सा स्टाइल देखो। आई एम टेकिंग दिस एंटायर टर्म एज अ कॉमन। इंटू एक्स कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर देखो एक एक्स कॉमन गया तो एक एक्स बचा। नीचे में भी यू एक्स एक था, यू एक्स कॉमन ले लिया है तो एक यू एक्स बचा। सेकेंड टर्म में यू वाई नहीं था, यू वाई ऊपर में था, तो वो यू वाई जैसे कॉमन लिया तो नीचे में एक यू वाई भी आ जाएगा। अब यहाँ पे g है बाई 2 है तो 2 यहाँ पे रह जाएगा, और ये ऊपर वाला g को हम लोग ड्रॉन करके नीचे ले आते हैं। ऐसे लिखते हैं। क्या दिखा? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व किया? 2ux into uy by g is what? r ना? This is r, isn't? तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू uy by ux into x 1 minus x by r। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से। as uy क्या था बच्चों? इन टर्म्स ऑफ एंगल, यहाँ एंगल का जरूरत पड़ेगा u sin थीटा, और ux क्या है? ux इक्वल टू u cos थीटा। तो यहां से अपने को मिल जाएगा uy बाई ux इक्वल टू u sin थीटा बाई u cos थीटा which is equal to tan theta. So from this equation I am taking this equation as equation number 6. So from 6 y equal to uy by ux equal to tan theta. It is x tan theta
1 minus x by r. Now observe this equation. This is a quadratic equation. Here also you can easily say one thing. At y equal to 0, y कहाँ पे 0 होता है? y equal to 0 at दो फैक्टर होगा. y equal to जब 0 होगा, tan theta is a constant quantity. When there are two factors, one factor is x and another factor is this one. When x equal to 0, या तो फिर 1 minus x by r equal to 0, that is equal to x equal to r. And we know that at x equal to r में y 0 होता है, at x equal to 0 में भी y 0 होता है. This is the quadratic equation. The coefficient of quadratic equation is what? Negative. So how this quadratic equation will look like? Negative. Already we have drawn that graph. ये रहा ग्राफ. इस ग्राफ से हम लोगों को इसका मैक्सिमम हाइट कहाँ पे मिलता है? r/2 पे. देखो अच्छा ये तुमको पता करना पड़ेगा h का वैल्यू कितना आएगा, किस x का वैल्यू में आएगा. चलो वो भी पुट कर लेते हैं. देखो आप एक चीज और यहाँ पे तुम लोगों को दिखाते हैं. Now h equal to we just found uy square by 2g and r equal to we found 2ux uy by g. So h by r equal to कितना आएगा? देखो h by r करेंगे तो क्या आएगा? uy square by 2g divided by 2ux x सफिक्स में है, uy by g. ये g कैंसल, एक uy कैंसल. कितना हुआ रे? uy by ux by 4. uy by ux इक्वल टू कितना मिला था अपने को? tan थीटा. So this is equal to tan theta by 4. So we found here very interesting relation between maximum height and horizontal range. So we can write here h equal to r tan theta by 4. So that means when y equal to h, x equal to r tan theta. अच्छा x का वैल्यू यहाँ पे चलो निकालते हैं, इसको यूज करेंगे. हाँ, फ्रॉम 6 सब कैलकुलेशन से मिलेगा, सारा चीज कैलकुलेशन से. फ्रॉम 6 when y equal to h equal to r tan theta by 4, लिखो y के जगह में r tan theta by 4. x का वैल्यू चाहिए ना अपने को. x tan theta 1 minus x by r. tan theta कैंसिल करो, so it becomes x into r minus x by r. तो यहाँ बन जाएगा r स्क्वायर और ये 4 इधर ले आएंगे. So it becomes what? 4x square minus 4xr plus r square. A quadratic equation and it's a perfect square. So it is 2x minus r whole square equal to 0. So x equal to r by 2. So y equal to h कहाँ पे मिलेगा? Hence at x equal to r by 2 में y equal to h मिल रहा है, यानी मैक्सिमम. और ये होता भी है. हम लोग ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be found where two roots are there. 2 roots by 2 में अल्फा प्लस बीटा by 2 में अल्फा 0 है, बीटा r by 2 पे इसका हाइट मैक्सिमम होगा. So this is what
দিস ইজ ম্যাক্সিমাম হাইট এট r/2 আদি বুঝেছিস বাবা এতটা? হ্যাঁ স্যার। বেশ। আচ্ছা তোর নিটে আছে, তুই নিটে টেন নিয়েছিস না যেই মেনেরটাতে? স্যার যেই নি, কোনটা? যেই মেনছিলেন মানে যেই যেই মেন্স, যেইতে তো তাহলে একটা জিনিস তোকে বলে রাখি, তোর যতগুলো প্রজেক্টাইল মোশনে যে সামস গুলো আছে সেইগুলোকে হ্যাঁ স্যার। পুরোপুরি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ফরম্যাটে আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা তোর হাইলি ইম্পর্টেন্ট, এটা তোর লাগবে। এখান থেকে তোর আচ্ছা। ভালো ভালো ম্যানিপুলেশন, আমি জানি না তোদের ফিজিক্স টিচার তোদেরকে আকাশে সেটা পড়িয়েছে কিনা। ফুলবাগানে আছিস তো? আরে হ্যাঁ স্যার। ফুলবাগানে, তুই ফুলবাগানে আছিস তো? না স্যার, ইয়ে পার্ক সার্কাসে মানে ও সেন্টার সরি, পার্ক যেটা সার্কাস, ব্রাঞ্চে। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, সেন্টার। তো তুই ওইখানে ওই পার্ক সার্কাসেরটাতে আছিস, তো পার্ক সার্কাসেরটাতে আমি জানি না ওইখানে তোর ওটা পড়িয়েছে কিনা, মানে ওই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ফরম্যাটটা দিয়েছে কিনা। আমি যেটা দিচ্ছি সেটা একটু ভালো করে নিবি, তাতে তোর সুবিধে হবে, অনেক জিনিসগুলো ঠিক আছে। তোর ওটা বুঝতে পারবি। ঠিক আছে, चलो এটা দেখাচ্ছি। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया तुम लोगों को? रणवीर कोई प्रॉब्लम? रिद्धि तो समझी? राइट सर। ठीक, चलो अब हम लोग कुछ और स्पेशल चीजें यहाँ से सीखेंगे। क्या स्पेशल चीजें, चलो देखते हैं। ये तो समझ में आ गया सारा फॉर्मूला के टर्म में, कब कब क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी फॉर्म दिखा दिया। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी इस फॉर्म में लिखने से बहुत कुछ देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है, चलो वो भी दिखाते हैं। ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O, ये दूसरा रूट है R, ये मैक्सिमम हाइट H मिलेगा r/2 पे। मान लेते हैं कोई भी y सेम हाइट पे है, पार्टिकल व्हेन क्रॉसेस द सेम हाइट, द सेम हाइट y, ऑब्वियसली सेम हाइट पे वो ऐसे क्रॉस करेगा, इधर से यहाँ पे क्रॉस करेगा। रणवीर तू बता, सेम हाइट जब क्रॉस करेगा तो टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम, अगर चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये किस तरह से पूछे तो समझ में आएगा। When particle crosses this point, नाम देते हैं इसका B, इसका नाम देते हैं C. If crosses this point B at time t1 और C को at time t2, तो t1 प्लस t2 कितना? TF हो जाएगा। TF हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन को यूज करके बनाया बताओ? कौन वो, ऑब्वियसली दिस इक्वल टू TF। कैसे? हाँ क्योंकि सर वो जो जितना टाइम उतना जानने में लगता है वो डिस्टेंस उतना ही नीचे आने में लगता है वापस। नहीं बेटा, तो वो तो हम बोला ना मैथमेटिकली दिखाना पड़ता है, और ये दिखाया भी था। अरे इस इक्वेशन को यूज करो ना, यू वाई, ये बताया था ना, y इक्वल टू क्या था, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करोगे तो क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू वाई टी प्लस वाई, याद है? तो ऑब्वियसली देयर आर एट सेम आई, तो सम ऑफ रूट कितना हो गया, t1 प्लस t2, द सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू कितना, माइनस b बाय a, तो हो गया b हो गया uy, और a कितना हो गया g/2, दैट इक्वल टू 2uy/g विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इस इक्वेशन को और एक तरीके से लिखना सिखाया था ना, इसको कैसे लिखना सिखाया था बोलो? uy/t कॉमन लिया था, और इसको लिखेंगे 1 माइनस टी बाय, देखो uy नीचे आ गया था, यानी ये बन जाएगा 2uy/t मतलब tf। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको,
বুঝেছিস সাদীপ? এটা হ্যাঁ এইভাবে স্যার। লেখা যায়, দুটো রুট, y কখন 0 হবে রে, y টা 0 হবে যখন t = 0 আর t = tf এ, তাহলে এখান থেকে হ্যাঁ সেটা পেয়ে যাচ্ছে। तो ये हो ঠিক गया আছে। सम ऑफ रूट। अच्छा, এটা তো হলো এই ব্যাপারটা। अब जरा सोचो, पॉइंट यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विद सर्टेन वेलोसिटी जो भी है u, मेकिंग एन एंगल थीटा। So at same distance, same height, it will be at x1 and it will be at x2. This is x2. How can you find out this x1 plus x2 equal to কত? Which equation we should use? The equation that we got, equation of the trajectory. Same y na? The equation of trajectory, which is equation 6, as y equal to tan theta x by x tan theta 1 minus x by r. You can write it as, भेंगे दे, ये बन जाएगा तुम्हारा x² tan theta by r minus x tan theta y equal to 0. तो y 2x पे आ रहा है, यानी x1 पे और x2 पे, so x1 plus x2 is a sum of root which is equal to tan theta minus b, which is tan theta divided by a. A is what? Tan theta by r. This is equal to r, the horizontal range. That means this x1 plus x2 equal to r. That means this is x1 and the same thing, this is also x1. Why? Because the total sum is what? R na. So eta x2 or eta x1. What is the product of these two distances? Product bata rahe Ranveer? बताओ प्रोडक्ट। दोनों का लाइक tan स्क्वायर बाय r हो जाएगा, क्यों tan स्क्वायर यहाँ से थीटा बाय देखना, r ना। अरे c बाय a करना पड़ता है ना, तो c कितना हुआ, y है, तो y बाय a कितना, a हो गया tan थीटा बाय r, यानी r ऊपर चला गया। तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू y r बाय tan थीटा। ये समझ में आया? हाँ सर। रिद्धि तुमको समझ में आया? रिद्धि? हाँ सर। क्योंकि इसका भी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा, क्यों हम लोग निकाल रहे हैं। आदि তুই বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে এটা আমরা পেলাম। এইবার difference of root. What is the separation between these two points B and C? The same horizontal level, what is the separation? You can easily find it out by several means. This equal to nothing but T2 minus T1 into x into ux also. You can easily write it. So one way to write this equation as T2 minus T1 ওইখান থেকেও যেতে পারিস, ঠিক আছে, অথবা ডাইরেক্টলি এই ইকুয়েশন দিয়েও করতে পারিস। আমার তো মনে হয় এই ইকুয়েশনটা করাটা বেশি ইজিয়ার। So BC equal to BC, separation between two walls or separation between 2 points at same height. Same point, points at same height. তাহলে এটা কত হবে? This can be written as অন্যভাবেও দেখাচ্ছি। ধর এখানে ভেলোসিটি যা হবে vy, তাহলে এখানেও vy হবে মাইনাস vy। তাহলে একদম জাস্ট লাইক প্রজেক্টাইল মোশন না, এটা এই প্রজেক্টাইল মোশন যেটা বি থেকে স্টার্ট হয়েছে সি তে শেষ হয়েছে,
बी में स्टार्ट हुआ, सी में खत्म हुआ, उसी का ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। इसको हम लोग नाम दे दिया डेल्टा एक्स, इस हॉरिजॉन्टल रेंज का नाम दिया डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखेगा डायरेक्टली, डेल्टा एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू यू एक्स, क्योंकि ये तो सेम है, वी वाई बाई जी। तो 2 इंटू यू एक्स बाई जी, और वी वाई को क्या लिखेंगे, वी वाई को लिखेंगे हम लोग, वी वाई को लिख सकते हैं क्या रे, यू वाई माइनस जी टी वन। ठीक है, 2 वी वाई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, यू एक्स बाई जी। अच्छा इसको नहीं लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। हाँ এটাকে এইভাবে লিখবো, यू एक्स बाई जी, 2 वी वाई को लिख सकते हैं वी वाई माइनस ऑफ माइनस वी वाई। क्यों ऐसा किया, इसका रीजन ये था, वी वाई का मतलब लिखेंगे पहले वाला हाइट में गया वो T1 टाइम पे, और ये वाला कितना टाइम पे गया, ये T2 टाइम पे। तो ये बन जाएगा तुम्हारा यू वाई माइनस जी T1 माइनस ये बन जाएगा यू वाई माइनस जी T2। मतलब यू वाई कैंसल, ये बन जाएगा तुम्हारा सिंपली यू एक्स इंटू जी T2, यू एक्स बाई जी T2 माइनस जी T1, मतलब सिंपली यू एक्स इंटू T2 माइनस T1, जो पहले बोल रहा था। अब T2 माइनस T1 कहां से मिलेगा, T2 माइनस T1 इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, इसी इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट कितना होता है रे, रणवीर बता, डिफरेंस रूट ऑफ अंडर रूट, डी बाई ए, रूट अंडर रूट डी ओवर बाई ए डी ना। बाई। हाँ तो डी कितना है, इसका डी कितना है, चलो निकालते हैं डी इसका, यू वाई स्क्वायर माइनस 4g, मतलब यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy। तो इसको डायरेक्टली पुट कर देंगे वैल्यू। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू नथिंग बट यू एक्स इंटू रूट ओवर यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy। This is the story. If the height is given to you, you can easily get height and point of projection speed अगर सप्लाई कर दिया तो किसी भी दो पॉइंट का बीच का, यानी वो सेम हाइट के दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन इस फार्मूला से डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। आदि बुझे चीज, है सर। रिद्धि क्लियर है बच्चे? हाँ सर। चलो अच्छी बात है। तो ये था मेरा यहाँ पर इस जगह में। अच्छा अब आते हैं हम लोग और क्या क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, ये सारा बात तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेम हाइट। एंगल ऑफ एलिवेशन at same height, at same horizontal points, same label points। फिर से पिक्चर ड्रॉ करते हैं। मान लो ये है तुम्हारा यू स्पीड से फेंका, एंगल हो गया थीटा, सेम हाइट का दो पॉइंट लिया, ये भी y और ये भी y, ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है x2।
if I'm taking these 2 points as B and C. If angle of elevation of the point B is alpha, or angle of elevation of C is beta, you can easily get the relation between this tan alpha plus tan beta. I can show you that tan alpha plus tan beta is equal to tan theta. Theta माने angle of projection. Theta is what? Angle of projection. We call theta equal to angle of projection. चलो कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से निकालते हैं. tan alpha equal to क्या? LHS. tan alpha equal to y by x1. Tan beta equal to what? Y by x2. So tan alpha plus tan beta is equal to y 1 by x1 plus 1 by x2. मतलब y x1 plus x2 divided by x1 x2. y x1 plus x2 का वैल्यू अभी मिल गया अपने को r, और प्रोडक्ट का वैल्यू थोड़ी देर पहले तुम ही लोगों से निकलवाए थे. क्या निकला था रे? y r by tan थीटा. इसको पुट करेंगे y r by tan थीटा. ये y r कैंसल हो गया तो बच गया कितना? tan थीटा. So what we have learned, at two same height point or same level point, the sum of tan of their angle of projection is always constant, and that equal to angle, the sum of angle of elevation of same point, same level point, tan of angle of elevation of same level point is tan theta, that is angle of projection. हो गया? ये वाला बात समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम तो पूछो. रणवीर क्लियर है? ऋतिक क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है. हर्षित तुमको समझ में आया? हर्षित बेटा समझ में आया? हाँ सर. ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब यहां से हम लोगों को एक चीज और भी जानना है. अभी तक देखो कहीं पे भी वी हैवंट यूज एनी एंगल. नाउ द केसेस वेयर वी हैव टू यूज एंगल्स. केसेस where we will use angles, angle of projection. सबसे पहला केस, the case where two particles or two projectiles are thrown with same speed, but at two different angles. एक ये वाला और दूसरा ये वाला. Such that ये एक एंगल है θ1 और दूसरा वाला एंगल हो गया θ2. Such that their horizontal range is same. Their obviously height may be different. First one is h1 and second one is h2.
So we are interested to know the relation between this theta 1 and theta 2. कैसे मिलेगा? As we know, R इक्वल टू कितना बच्चों? R इक्वल टू 2ux uy by g. वैल्यू पुट करो. 2 इंटू ux का मतलब u cos थीटा, तो पहले वाला में लिखना q cos थीटा 1 sin थीटा 1 by g, और दूसरे वाले के लिए लिखेंगे 2u, अच्छा यहाँ पे एक u होगा, यानी ये वाला u इंटू यू माने यू स्क्वायर साइन थीटा 1 चल इसी को ही कर लेते हैं. हाँ, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 का मतलब साइन 2 थीटा 1. ऑल्सो सेम वे में हम लोग r इक्वल टू लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाई जी. दोनों तो सेम है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं हेयर साइन थीटा 1 क्या रणवीर? कुछ नहीं सर, वो गलती से हो गया. ठीक है, 2 साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2, साइन 2 थीटा 1 इक्वल टू साइन 2 थीटा 2. अब ये दोनों एंगल में ये एंगल बोल दिया क्लियरली थीटा 1 नॉट इक्वल टू थीटा 2. तो क्या होगा? कॉमन सेंस से सोच, अगर ये दोनों एंगल सेम है, मतलब ये दोनों रेशियो सेम है, तो नेचुरली क्या होगा? इसको हम लोग लॉजिकली भी बता सकते हैं, मैथमेटिकली भी बता सकते हैं. लॉजिकली क्या होगा बच्चों? दो रेशियो सेम है, यानी एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. यही होगा ना? दो रेशियो अगर साइन रेशियो सेम है दो डिफरेंट एंगल के लिए, तो नेचुरली एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. मान लेते हैं ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थीटा 1 बड़ा ले लिया. तो हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा 2 मस्ट बी इक्वल टू, या दोनों का समेशन बोलेंगे तो क्या आएगा? ये वाला दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएगा. 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 प्लस 2 थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा 1. That means the angles are complementary. Theta 1 and theta 2 are complementary. For the same range, they have to be complementary. ये तो हुआ इसका कहानी. अच्छा, दोनों के हाइट का क्या कहानी है? हाइट के बीच में क्या रिलेशन आएगा? चलो देखते हैं. Also h equal to, we know that uy square by 2g. यहाँ पर एंगल चाहिए अपने को, तो ये क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय थीटा बाई 2g. h लिखा ना, तो सो h1 इक्वल टू लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g, और h2 इक्वल टू लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g. अब ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन थीटा 2 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा 1 विच इज इक्वल टू कॉस थीटा 1, यानी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. सो h1 इंटू h2 क्या मिलेगा? u टू द पावर 4, या रहने दो u स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 का होल स्क्वायर हो गया
या जानबूझ के 2 लगा देते हैं ताकि नीचे में 4 से डिवाइड कर दें, और ऑलरेडी यहाँ पे 2g यानी 4g स्क्वायर हो जाएगा। चलो 4g के जगह में इसको ऐसे कर देते हैं, g स्क्वायर भी है ना, तो g को अंदर डाल देते हैं, बाई 4 हो गया अब नीचे में, और एक 4 इधर से आया। ऊपर वाला ध्यान से देखो, 2u स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 का मतलब होता है, बाई g का मतलब ही होता है r, तो ये बन गया r स्क्वायर बाई 4 16, मतलब r का वैल्यू आ गया 4, या r स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं, यानी इस केस में r इक्वल टू आ जाएगा 4 रूट ओवर h1 इंटू h2। ये रिलेशन मिल गया अपने को। ये समझ में आया सबको? क्लियर? रिद्धि तुमको समझ में आया बेटा? आदि कोनो सुविधा से? ना सर। ठीक है। तो ये मिला जब हम लोग एंगल का एक केस लिया, जब हम लोग एंगल तुम्हारा কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল যখন ছিল তখন আমরা এটা নিয়েছি, তখন কি কি রিলেশন পাওয়া যায় সেটা দেখালাম। শুধু তাই নয়, h1 বাই h2 এরও রিলেশন এখান থেকে বের করা যায়। एंड चलो h1 बाई h2 करते हैं, कितना आएगा देखो तो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद आएगा दैट इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। थीटा 1 या tan स्क्वायर थीटा ले सकते हो, u स्क्वायर बाई थीटा h1 बाई h2 इक्वल टू दिस वन। ठीक है, क्यों tan स्क्वायर हुआ? क्योंकि ये sin स्क्वायर थीटा और इधर में cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वन ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जय हो। h1 लिया तो यहाँ थीटा 1, h2 लेते हैं यहाँ पे h2 बाई h1 करते तो ये tan स्क्वायर थीटा 2 हो जाता। ओके फाइन, ये तो हो गया इसका कहानी। अब आ जाते हैं दूसरा केस। As r equal to, we just found u square sin 2 theta by g, तो r का वैल्यू, ये r का वैल्यू अगर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन रखा, g भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो r का वैल्यू किस पे डिपेंडेंट? थीटा पे डिपेंडेंट। तो r का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो यहाँ लिखेंगे r equal to r max when sin 2 theta equal to 1, मतलब 2 theta equal to pi by 2, मतलब theta equal to pi by 4, 45 degree. That means that is at theta equal to 45 degree, r का वैल्यू मैक्सिमम होगा एंड दैट इक्वल टू होगा u स्क्वायर बाई g। उस केस में देन h का वैल्यू क्या होगा? h इक्वल टू r tan थीटा बाई r मैक्स tan 45 डिग्री बाई 4 होता है ना, r tan थीटा बाई 4 that we just found. So this will be equal to r max यानी u स्क्वायर बाई g यानी 4g हो जाएगा, tan 45 यानी 1. So this is not maximum, this is height when angle of projection is 45 degree. At this 45 degree angle, horizontal range is maximum. चलो फाइन, ये था जब थीटा का जरूरत पड़ता था। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इतना करने के बाद में हॉरिजॉन्टल के लिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या बोल रहा है? प्रोजेक्टाइल A
projectile is thrown with initial velocity u vector equal to 30 I cap plus 40 j cap मीटर पर सेकेंड, ये तेरे हाथ में सप्लाइड है। अब तुमसे पूछ रहा है यहाँ पे फाइंड नंबर 1 मैक्सिमम हाइट, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल रेंज, नंबर 3, अच्छा इसको नंबर 2 पहले नंबर 1 ये लेते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नंबर 2 मैक्सिमम हाइट, नंबर 3 हॉरिजॉन्टल रेंज। और कुछ निकालना हो वेलोसिटी एट हाफ द हाइट। चलो और एक लेते हैं, वेलोसिटी when it makes 45 degree with horizontal। पांच क्वेश्चन, चलो ये 5 क्वेश्चन का एग्जाम्पल के तौर पे हम दिया, हम पहले ही बना देता है, ठीक है। पहले सबसे पहले देखो ux 30 uy 40, तो tan थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू 40 by 30 मीन्स 4/3, तो थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 and that equal to 53 degree, you know that। ये एक नंबर का जवाब। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू कितना रहे, uy स्क्वायर बाय 2g, uy स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर by 2 into g, take g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गया 10, so this will be 1600 माने 800 मतलब ये हो गया 80 मीटर। 3 number horizontal range, we don't need to go for the several different calculation, as h equal to r tan theta by 4, so r equal to h by 4h by tan theta by 4h cot theta, h by r equal to tan theta by 4, so r equal to 4h by tan theta, so 4h is equal to 80, tan theta equal to 4/3, so r equal to 240 meter। अच्छा এটা হলো, তারপর 4 number velocity at half of the height, which equation we have to place, y equal to x tan theta, oh क्या पूछा रहा है, velocity पूछा ना, at half of the height, so we don't need to go there। dy square equal to uy square minus 2g, y का वैल्यू h by 2। चलो
h का वैल्यू होता है यू वाई स्क्वायर बाय 2g और ये 2g कैंसल, मतलब हो गया यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर बाय 2. So Vy equal to simply Uy by root 2. Uy is 40 by root 2, that equal to 20 root 2 meter per second. So this is question number 3. 3 था ना 4 था 4. 5 number. 5 number is velocity when it makes 45 degree with the horizontal. Initial angle was 53, the angle will decreases, right? We can find out in several ways. At somewhere height at this point, the velocity is making an angle 45 degree. So I am taking, this is ux and this is vy. So 45 degree angle dawa mane ki re, given vy by ux equal to tan 45 degree. Means means vy equal to ux. So vy we got, vy equal to কত 30, ux is given না 30 meter per second, we got vy. তো কি চেয়েছে আমাদের, হাইট চেয়েছে না ভেলোসিটি, না ভেলোসিটিটা চেয়েছে, ওকে ফাইন, তাহলে ভেলোসিটি পেয়ে গেলাম, vy টা পেয়ে যাচ্ছি. সো ভেলোসিটি v is equal to root over vy square plus vx square means ux square, and vy square we just got ux square plus ux square, means it is ux root 2, means 30 root 2 meter per second. It is v. सबको समझ में आया? रिद्धि समझ में आया? रिद्धि सो गई क्या बेटा? नहीं सर, नंबर 4 फिर से समझा दीजिए ना. नंबर 4 में बेटा क्या पूछा देखो, वेलोसिटी एट हाफ द हाइट. जब हाफ द हाइट होगा तो वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी पूछा था ना, तो हम तो सिर्फ वी निकाल दिए, ठीक है. वेलोसिटी एट हाफ द हाइट, तो सबसे पहले यहाँ पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाला, हाइट का वैल्यू दे दिया h/2, हाफ द मैक्सिमम हाइट. हाइट बोलने का मतलब मेरा था हाफ द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट लिख लिया h का वैल्यू होता है u स्क्वायर बाय 2g. यहां से कैलकुलेशन किया तो मेरा आया vy इक्वल टू इतना. चलो vy का वैल्यू लिख लेते हैं इतना, तो मेरा v का वैल्यू मांग रहा था ना, तो यहाँ v इक्वल टू हो जाएगा, यहीं से करते हैं, v इक्वल टू vy स्क्वायर प्लस ux स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि vx और ux तो सेम है. तो vy का वैल्यू कितना मिला बच्चे, vy स्क्वायर का वैल्यू uy स्क्वायर बाय 2, मतलब 40 था ना ये, तो ये बन गया 800. ये समझ रहे, vy का मतलब 800 कैसे आया रिद्धि? हाँ सर. हाँ सर. चलो ये समझ में आ गया. तो बेटा 800 कैसे आया, क्योंकि uy का वैल्यू 40 दिया हुआ है, देखो 40 दिया हुआ है, तो 40 का स्क्वायर 1600 बाय 2 मतलब 800, और ux का वैल्यू दिया हुआ 30, मींस दिस इज 900. तो यहां से मिल जाएगा 10 रूट 17 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड या v का वेलोसिटी, ठीक है. वेलोसिटी का अगर वेक्टर फॉर्म में मांगेगा तो बोल सकते हैं हम लोग कितना, 20 रूट 2 आई जे कैप और 30 आई कैप, हो गया मीटर पर सेकेंड. आदि তোর কোনটা অসুবিধা হয়েছে বল, আমি আবার বোঝাবো. না স্যার বুঝতে পেরেছি.
বুঝতে পেরেছি, সবটাই বুঝতে পেরেছি, ভালো কথা। তাহলে একটা অঙ্ক আমি দিচ্ছি, এতগুলো করালাম, এবার অঙ্কটা আমি দিচ্ছি। Example 2. A projectile the trajectory of the projectile is given as y equal to 3/4x minus x square by 60, x square by 60, ये दिया हुआ। Find number 1 angle of projection number 2 horizontal range number 3 maximum height number 4 speed of projection, मतलब u निकालने के लिए speed of projection u। चलो पारो, ये चारे निकालने के लिए बोला। रणवीर क्वेश्चन समझ में आया? माइक खोल के बता। हाँ हाँ सर। चलो शुरू करते हैं फिर।
चलो बताओ रे, आंसर सब बताओ, कितना बनाया अभी तक? आदि प्रथमेर आंसरটা কত? স্যার রেঞ্জটা বের করলাম স্যার, রেঞ্জ 12 আছে হ্যাঁ বল, রেঞ্জ কত এসছে? স্যার 12 12। আর অ্যাঙ্গেল অফ প্রজেকশন? স্যার পড়ছে रणबीर तेरा कितना आया? मेरा भी एक ही बना है सर, हम मैक्स हाइट ही निकाले अभी। क्या निकाला? मैक्सिमम हाइट। हाँ वो कैसे निकाला? पहले हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेगा तब तो मैक्सिमम हाइट निकालेगा। 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, तभी तो 3 निकलेगा रे। वन 2 निकलेगा तभी तो 3 निकलेगा। हाँ तो हम क्या रे शायद गलती कर दिए कुछ। एक सेकंड। फॉर्म में कन्वर्ट करो, tan थीटा x into 1 minus x by r। आदिव से স্যার ওয়াইটা ফ্র্যাকশনে আসছে 244/60 আসছে কোনটা? স্যার ওয়াইটা, y বলতে ওয়াই মানে কোনটা? স্যার যেটা মানে ম্যাক্সিমাম হাইট। ফ্র্যাকশন আসছে, সে আসতেই পারে, সেটা কোনো ব্যাপার না, ফ্র্যাকশন থাকতেই পারে। চলো দেখি কি কি আসছে, এবার আমি করি। y equal to एक इक्वेशन दिया था, कन्वर्ट इट। क्या बोला था? इस पहले वाले टर्म का पूरा कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद ये 1 बचेगा, इधर में x बचेगा, ये 60 है, इधर 3 है तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, इधर 4 है तो इधर 4 लेना पड़ेगा। 4 से इसको कैंसिल करोगे 15, so it will becomes 3/4x 1 minus x by 45। मतलब कितना हुआ? Here this is angle of projection tan theta equal to 3/4, that is theta equal to tan inverse 3/4, which is equal to 37 degree. This is r, that means r equal to horizontal range r equal to 45 meter। স্যার H, বলছি স্যার বলছি আর বের করার জন্য ওয়াইয়ের জায়গায় 0 পুট করলে হবে না? আরটা বের করার জন্য y এর জন্য আমি ইকুয়েশনে সেট করে দিলাম তো রে। y equal to 0 যদি পুট করিস তাহলে তারপর তুই ওইখান থেকে বলছিস সেটা কমন নিবি, দেখ ওইটাই হ্যাঁ আসবে হ্যাঁ বাবা। স্যার, স্যার ওখান থেকে 12 আসছে তো। চলো দেখি দেখি তুই যেটা করেছিস আমি সেখান থেকে আসছে দেখি। 12 যদি আসে, 12 তো আসবে না, দেখি। y equal to 0 পুট করেছিস তো, তাহলে এখান থেকে এক্সট্রা কমন হ্যাঁ নিয়েছিস, স্যার 3/4 মাইনাস এইখানে তুই লিখেছিস x/60, নিশ্চয়ই এটাই করেছিস বাবা, তাই তো? হ্যাঁ স্যার এবার x equal to 0 তে একটা পেলাম, আর একটা পাচ্ছি আমরা x/60 equal to কত? 3/4, তার মানে x equal to হচ্ছে 3 into ক্যালকুলেশন 60
ক্যালকুলেশন গুলো হ্যাঁ, তুই ক্যালকুলেশনটা ভুল করেছিস। তার মানে এটা 45 হবে। যেদিক দিকেই যা না কেন আনসারটা সেমই আসবে বাবা। এটা হলো, এটা 2 নম্বরটা এইভাবে করা যায়। চলো 3rd নাম্বার। H maximum height is equal to r tan theta by 4. r এর ভ্যালুটা 45, tan theta equal to 3 by 4, and it is also 4. So it is obviously 120 135 নাকি রে, 35 by 16. This is horizontal range, sorry, maximum height. ये समझा रे रणवीर? हाँ सर। रिद्धि तुम समझी बच्चा? हाँ सर। चलो, तो ये मिला एच। अब हमको चाहिए क्या रे, मैक्सिमम, क्या पूछा था? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यू, वो कहां से मिलेगा? वो भी मिल जाएगा आसानी से। चलो आर का इस्तेमाल करते हैं ना। आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या रे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो सर थीटा तो मिल गया, चाहे तुम थीटा मिल जाए या ना भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 45, जी का वैल्यू 10 लेते हैं, लिख दो इधर 10, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री इस्तेमाल करते हैं। दैट कैन बी रिटन एज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, मल्टीपल एंगल फॉर्म में। tan थीटा का वैल्यू अपने को सप्लाइड है 2 into tan theta equal to 3 by 4, 1 plus 9 by 16, 25, 2 into 3 by 4 into 16 by 25, that equal to 45 into 10, जो कटता है काट दो, 4 और कुछ कट रहा है, एक अंत के 2 जाच्छे 5 और 3 से 15. So finally u square equal to 15 into 5 into 25 by 4, मतलब 25 25 3, ओके। तो u इक्वल टू आ जाएगा 25 by 2 root 3 मीटर पर सेकंड। दिस इज u। सबको समझ में आया? आदि बुझेছিস? স্যার বেশ, বলছি দেখ স্যার ওই তুই যে চিন্তা যেটা কর। এটা বল। স্যার ছিল না স্যার, যেখানে সেকেন্ড কোশ্চেনে কি ছিল সেকেন্ড মানে কোশ্চেন, স্যার যেটা ম্যাক্সিমাম হাইট যেটা ছিল স্যার, ওখানে স্যার হ্যাঁ ইকুয়েশন আছে, ওখানে এক্স এর জায়গায় যেটা মানে রেঞ্জ মানে আর বাই টু টু পুট করে তো হতো। একদম হতো। আমি সেখান থেকেও তোকে দেখাতে পারি, সেখান থেকেও যদি হ্যাঁ দেখাস, ওটা আলটিমেটলি সব রিলেশন গুলো তো এখান থেকে সবগুলো তোকে প্রত্যেকটা ম্যানিপুলেশনই বুঝিয়েছি, তাই না? হ্যাঁ প্রত্যেকটা জায়গা থেকে তুই ম্যানিপুলেশনটা বুঝিয়ে, তুই যদি বলছিস কি স্যার আমি ওইখান থেকে বের করবো, চল ওইখান থেকে বের কর। y ইকুয়াল tan থিটা ভ্যালুটা 3 বাই 4, x এর ভ্যালুটা তুই বলছিস r বাই 2 নেব, তাই তো? r টা কত নিয়েছিলিস রে? 45, তাই তো? 45 পেয়েছিলিস কত? 45। তো 45 r এর জায়গায় r বাই 2 মানে x এর জায়গায় r বাই 2 নেব, 45 বাই 2, 1 মাইনাস x এর জায়গায় 40, মানে এটা হাফ হয়ে যাবে। 45 বাই 2 x এর ভ্যালুটা, আর r টা হচ্ছে 45, মানে এটা হাফ হয়ে যাবে। তাহলে দেখো কত আসছে, 3 বাই 4 ইনটু 45 বাই 2, আর 1 মাইনাস হাফ মানে হচ্ছে হাফ। তাহলে এটা কত হয়ে গেল? y ইকুয়াল টু, এটা y টা h হয়ে যাবে, কত আসছে 100 এন্ড ওই যেটা আগে করেছিলাম 35 বাই 16 এসছে। হ্যাঁ ঠিক আছে।
বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ बेस। तो रणवीर तुम्हारा क्लियर है? अब प्रोजेक्टाइल में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ओके। ठीक, चलो कोई नहीं, फिर भी अगर तू देख लेना एग्जाम तो अभी कब एग्जाम फिजिक्स का? वेडनेसडे को है सर। वेडनेसडे को है ना, वो तब तो आ जाएगा, तब तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आएगा ना क्लास करने के लिए, तब तुमको उस समय और भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, चलो चला ठीक है যেতে रहने दो। ঠিক, আজকে এইটুকুই ছাড়লাম। তোর আর কোনো ডাউট আছে রে ঠিক আছে। আদি? না স্যার। ঠিক আছে, চলো।